ठीक है। यस, वेलकम बैक। IAS बाय द IAS, दैट इज प्रीसा IAS, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। देखिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 100, GS2 पॉलिटी, इंक्लूडिंग प्री मेंस इंटरव्यू एंड आफ्टर selection. After getting selection, this is the most important activities which should be known by you. Otherwise you will be failed in your career and you will be assaulted by the high court judges like Patna DMs. डांट खाते हुए वीडियो आपने देखा होगा ना तमाम। MP का भी बहुत घूमता रहता है, राजस्थान का भी दिखाई पड़ता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि DPSP रिफ्लेक्ट्स टू बैन लिकर बाय अ स्टेट while some state sells it. How this contradiction going on in Indian states? DPSP से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि सरकार संविधान में लिखती है कि भाई मद्य निषेध किया जाएगा, उसके बावजूद भी किसी स्टेट में मद्य निषेध पूरी तरीके से नहीं है, कहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे चल रहा है? और इसके साथ एक क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट से रिलेट होता है, दैट इज डिस्पाइट ऑफ बैनिंग लिकर, what is the exceptions where the liquor can be served in that jurisdiction of a states, geographical jurisdiction of the state? तो क्या क्या एक्सेप्शंस दिया है? मान लीजिए बिहार में और गुजरात में जैसे बैन है, तो बैन का मतलब दैट इज नॉट 100% बैन, देर इज एक्सेप्शंस। व्हाट इज दैट एक्सेप्शंस? कि कोई विदेशी डेलीगेट्स आ रहा हो, फॉरेन डेलीगेट्स इनटू द कंट्री, एनी सेरेमोनियल occasion where it is required, not internal, that is external. Internal आप नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप being a DM you can choose your selection of brand and you get it done, no. But the during the delegation meeting, being a bureaucrats, being a government officials, you can take it. देखिए दो कंडीशन अलग अलग हो गए। वहीं आदमी जब अकेले है तो नहीं पिएगा, डेलीगेट के साथ में तो पिएगा, आर्मी पर्सनल है तो पिएगा हमेशा। तो दैट एक्सेप्शन शुड बी नोन इन योर माइंड, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी उसमें भी आ सकता है इंटरव्यू में। अच्छा बिहार के हैं तो या फलाने जगह के हैं, आपका क्या कहना है? तो रूल बड़ा क्लियर है। वी कैन नॉट क्लेम, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज दैट द इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ राइट क्या कहता है कि इन इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द इनइक्वल, इक्वल फॉर द इक्वल, सीधी सी बात है। तो वो nobody else can claim that why should I not get that liquor once you are serving to that person. So that theory will apply of equality of right, does not mean that the everybody is equal. So DPSP are guidelines given to the state by the Indian Constitution, ये आपको मालूम ही है, to be used as a moral compass for governance. अब देख लीजिए, बस यही है प्रिलिमिनरी का ऑप्शन, moral compass for governance. While DPSP suggests the state should prohibit the consumption of alcohol, it does not make it mandatory for the states to do so. कितना क्रिस्पी आंसर है इसका। ये मैं आपको सैंपल के तौर पे बताना चाह रहा। इन इंडिया द रेगुलेशन ऑफ अल्कोहल फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, which means that both the central and state government can make laws on the subject. This has led to different states adopting different policies on alcohol. Some like Gujarat and Bihar have implemented a complete ban on the sales and consumption of alcohol, while others like Maharashtra, Goa and Karnataka have a more liberal policy towards alcohol. The contradiction between DPSP and state laws on alcohol exists because DPSP is not legally enforceable. आपको मालूम है, it is a guiding principle that the state can choose to follow or not. In fact, in several cases, the Supreme Court of India has upheld the right of a state government to regulate the sale and consumption of alcohol in their respective states. क्लियर खत्म। तो ये 150 शब्दों में आंसर आ गया, टू दी पॉइंट कैसे लिखना है। ओवरऑल द रेगुलेशन ऑफ अल्कोहल इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स इशू एंड डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर कल्चरल दिस एंड दिस इज दैट। क्वेश्चन इज दैट इट इज नॉट इनफोर्सेबल, यू नो बेटर। Another question will become on DPSP like that, why the regional variations amongst states prevails
प्रिवेल्स और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द पैरा ऑफ एल्कोहल, जो भी है, कौन सा है आर्टिकल 39 47। किस टाइप से क्वेश्चन घुमाएगा कि व्हाई रीजनल वेरिएशन इज एग्जिस्टिंग टू इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 47। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देगा। ये पूछ लेगा कि क्या रीजनल वे, ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द डॉक्ट्राइन बिहाइंड implementation of Article 47 in India as not a uniform situation। तो ये क्वेश्चंस को घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, डीपीएसपी में आपने सर्किल नंबर 1 और 2 तो आप पढ़े हैं, ये 2 को कवर करता है, 3 में तो ये भी कम खींचेगा। Why DPSP is not being fully implemented? Discuss it in regional, जो हम बोल रहे थे वो इसमें है भी, discuss it in regional variation of states of India। अब इसमें देखिए कि ये टोटल जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, आपका अपना लॉजिक है, और इस लॉजिक को कैसे आप लिखेंगे वो हमने बताने का प्रयास किया है। The DPSP are the guidelines and principles laid down in the constitution to be followed by the state in its policy and decision making, non justiciable meaning they are not enforceable। ठीक है, आगे चलिए इसमें। There are several reasons why DPSP have not been fully implemented in India। One of the main reason is the lack of political will and commitment on the part of the government। Many of the DPSP require significant investment and resources, and some may not in line with the government's political agenda or priority। Suppose there is a enormous scarcity of इकोनॉमिक गेटिंग इकोनॉमिक रेवेन्यू, जैसे गोवा है, तो क्या करेगा वो अगर बंद कर देगा, इन दैट सिचुएशंस देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ रेवेन्यू बिकॉज द होल रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन द लिकर। देयर इज नो अल्टरनेटिव मीन्स, देयर इज नो एनी अदर मीन्स एक्सेप्ट टूरिज्म टू गेट इट फंड, गेट इट इनकम फ्रॉम द स्टेट। तो वो वहाँ पे कैसे बंद करेगा, नहीं कर सकता। Additionally, there are regional variation in the implementation of DPSP across India। A state with higher level of economic development and social indicators have been better able to implement। For example, Kerala, which has a high literacy rate and a well-developed healthcare system, has been able to implement several DPSP। कहने का मतलब है कि whosoever is stronger than others in economic terms, they can be eliminated, they can be stop liquor, because their revenue can be get from other resources। But once there is no any extra means for in addition to that alcohol, then there is a forced method to adopt it, not to eradicate it। In contrast, वही lower economic, another factor that affects the implementation is corruption। Corruption undermines the effective। डू यू नो व्हाट इज करप्शन? अब इसका एक टर्म देखिए, ये फिर आएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 में, समझ रहे हैं? अरे ये क्या हो गया, गलत दबा दिया क्या? कहाँ गया भाई? थर्ड, अच्छा यहाँ है ये। अब व्हाट इज करप्शन? करप्शन की मीनिंग सबको पता है, लेकिन आप सुन के ताजुब होंगे कि अगर आपने वो मीनिंग लिख दिया तो 1 नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है करप्शन का मीनिंग, तो आप वो मीनिंग बताएंगे जो शासकीय गवर्नमेंटल डिक्शनरी के द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है ना? क्योंकि इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ए बिग हाउस और बिग ऑफिस और बिग एरिया ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, in that situation you cannot make meaning by your subjective manner। otherwise होगा क्या, एक कलेक्टर ने कुछ और मीनिंग बता के किसी को ट्रैप कर लिया, दूसरा आएगा कहेगा ये कैसे हो सकता है, ये मैं तो नहीं मानता, तो छोड़ देगा। तो देयर इज ए नीड ऑफ डेफिनेशन, नीड ऑफ सेंस फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ द होल कंट्री, पूरे देश के लिए। तो क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग बड़ी एक लाइन में सीबीसी ने जो डिफाइन किया है वो मीनिंग याद रखिए। वो मीनिंग है एनीथिंग
एनीथिंग अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द रूल, बस इतनी सी बात लिखना है। एनीथिंग अगेंस्ट द रूल इज करप्शन। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन बाय सीबीसी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो वो नंबर 0 देगा और उल्टा